no, not, sorry. Gender free terms. Congressman के बदले representative should be the correct word that has to be used. Personnel, parenting. Police officer, sportsman, prompt response. Send congratulations within 2 days of an event. Whenever you had and you saw your subordinate doing well, immediately you congratulate him. Immediately thank you. These are immediate things, these are the courteous things which are important. These are the courteous things which are necessary. क्योंकि ये चीजें से terms and interpersonal relations will be much better. Answer request within 5 working days of the receipt. Verbal courtesy. In addition to the discussed rules, certain these in verbal communication, always wait for the chance to speak. Never interrupt the speaker. अगर कोई आपसे बात कर रहा है, don't interrupt. During GD, जो CAT के actually are the part of the faculty for career launcher already. They have GDs. GDs and interview to train people for CAT. GDs में जो organizations में जब जाते हैं, institutes में या organizations जो भी होती हैं आजकल, all the LCA की जो भी करती हैं या engineers की करती हैं, Infosys and others, you have to pass through GD. आपका aptitude अच्छा है कुछ भी, लेकिन GD में आपको पास करना है. That is the important point. GDs में ये होता है, they see the teamwork. That's why a teamwork exercise was done because that is also part of self-effectiveness. उसमें ये देखा जाता है जो टीम जैसे ग्रुप्स बनते हैं 6-7 लोगों के, जो टीम ज़्यादा एग्रेसिव है कि नहीं I have to say, वो टीम को डिस्क्वालीफाई कर दें. What is done in a group discussion for any management institute or getting to any placement in an organization where teamwork has been stressed in group discussion कि एक कोऑर्डिनेट करता है एंड चांस देता है दूसरों को बोलने के लिए. That shows the leadership quality of a person. GDs में आपको कॉन्फिडेंस देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाता है, the content in which you are giving the GDs, and your body language is also very important. Body language is also एक बहुत, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है. कि मैं बताऊंगी क्या क्या तरीके हैं जो आप जज कर सकते हैं इसके इनइफेक्टिवनेस एज अ लिसनर. तो जीडीज में जो इंटरप्ट करता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है. लेट्स टेल यू दैट पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड. दैट इज सीन इन द मैनेजमेंट IIMs and others. So always try to maintain eye contact with the speaker. Why eye contact is important? Because whenever you speak through your eyes. आप एक किसी से भी बात करते हैं उसकी आंखों में देख के कहते हैं और आंखों से पता लग जाता है कि वो किस टाइप का पर्सन है और वो क्या आपका एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं. आपको आंखों से पता लग जाता है. द स्पीकर. नेक्स्ट, द टोन, द पिच शुड रिफ्लेक्ट आवर रिस्पेक्ट फॉर द लिसनर एंड द पर्सन. आपका क्या टोन है, आप बात कर रहे हैं, जब भी आपके ऑडिशन होता है कहीं भी आपका टोन देखा जाता है. किस टोन से किस पिच से बात कर रहे हैं. राजू प्रसाद यादव को देखती है, ही इज अ गुड orator. He is not a Harvard qualified person, but he went to Harvard to discuss about his railway case with the Harvard students. I am Ahmedabad guy, and he is a good orator because he has a sense of humor and his way of speaking appeals people. ये communication skills है. ये इनबोर्न कईयों में होती है, कई people generate करते हैं. There are many institutions that help in communication, helping to have your right pitch of saying and right tone of speaking. आगे. Now the courtesy. अब you see the Japanese कैसे courtesy करते हैं, झुक के. अगर आप झुकेंगे वो भी झुकता है, वो भी झुक के बोलते हैं. We should put our point in an assertive way without being rude, which
wish, or a card from the senior or the card from the GM to the person, maybe a worker, a staff or an executive. And that department, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हेल्प करती हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन का। घर में तो हम करते हैं, बट अ फ्रेंड जो आप भूल गए 1-2 साल से, अगर उनको बर्थडे विश कर दो, विल बिकम so friendly with you and then revive your friendship. These are small things that everyone knows, but कहीं हम भूल गए इस fast pace की दुनिया में. Next. Okay, life is not too short, but there is always time enough for courtesy. Life is with courtesy. That's all. I was talking to you about body language. Body language too different. Body language too. Words cannot. आपके gestures, आपकी body language, आपकी postures आपको बताते हैं आपका क्या attitude है. Ineffective speaker, gripping, leaning, finger tapping. अगर कई बार ये चीजें क्या होती है? Ineffective speaker means confidence नहीं है that person is not confident enough. अगर वो आगे जाता है, कई बार आप देखो कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है, tapping the leg, ऐसे कभी ऐसे, इसका मतलब क्या है? कभी आपने जानकारी करने की कोशिश की है? ऐसे ऐसे करना है या ऐसे बहुत ऐसे कई बार तो आदत होती है क्योंकि इनफेक्टिव है इन द सेंस उस पे या तो कुछ काफी स्ट्रेस है या ही इज स्कैर्ड, ही इज नर्वस, या समटाइम इट्स अ आदत है सब कईयों की करना है, जैसे कई होता है ऐसे करते रहते हैं तो आदत होती है कईयों की, बट इट इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन. लाइक यू से हैंडराइटिंग ऑल्सो sees the personality of a person. Lip biting, adjusting hair, कई बार ऐसे करते रहते हैं. That is also this thing. Simple common nervousness performed unconsciously. Next. 5 effective ways to make your body speak. Obtain accurate perception of the body image. You have to have, जैसी है body, you have to be confident about yourself. You have to be confident. कैसे भी हो, पतले मोटे हो, कैसे भी हो, लेकिन you have to be confident कि yes, this is me, this is my identity, this is me. What? Ajit? For all of you, my folded hand apology for the inconvenience because of the generator failure. I can very well appreciate that there is unbearable temperature and you are listening to Shikhaji. I'm grateful. I, on behalf of PMA as well as DAB, apologize for the inconvenience. In case somebody is feeling most inconvenient, he can take the front seat so that at least fan is working and they can have some breathing air for sitting. So we can start for a cup of tea and then after we come back. Water. Because today, because of the power failure, it has resulted a big problem to all of us. If we could have known to this step, we could have not arranged this kind of a seminar in this hour. My apology once again to all of you.
Scoring. Give yourself score each question using this formula. 5 points for very frequently, 4 points for frequently. मतलब पहला जो कॉलम है वेरी फ्रीक्वेंसी को आपने 5 पॉइंट देने हैं. आपने ऐड करना है कितने वेरी फ्रीक्वेंटली आपने किया, ऐड कर लिया इंटू 5 कर लीजिए. जितना भी ऐड किया 10 है 12 है उनको इंटू 5 कर लीजिए. आपने 2 में वेरी फ्रीक्वेंटली दिया, 7 में वेरी फ्रीक्वेंटली और 2 आ गए. सिमिलरली कितनों में आपने वेरी फ्रीक्वेंटली दिया उसको आप टोटल कर लीजिए. और रेयरली समझ आ गया. तो रेयरली में आपने ऐड करके रेयरली में लिखना है नर्सरी पेरेंट. कितना नर्सरी पेरेंट? इकोग्राम बना लिया आपने. ओके, यू नो अबाउट कंट्रोलिंग पेरेंट. कंट्रोलिंग पेरेंट मीन्स अथॉरिटेटिव. सब चीज आप कंट्रोल करना चाहते हैं, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं. तो ये क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए. हाउ अबाउट नर्चरिंग पेरेंट? व्हाट डू यू मीन बाय नर्चर? Nurturing a child, nurturing your subordinate, that is necessary. So it should come a certain level first. Adult, you are all adults, so it should be high score. Natural of freeness of stability. You have an open mind. And very frequent is adapted challenge. आपने अपने आप को adapt कर दिया है. That is your adapted challenge. This is your personality. Depiction. What you are and what you have made of yourself. Okay? सबने इकोग्राम बना लिया, ग्राफ चार्ट बना लिया. कैसे आ रहा है? आ रहा है. You have adapted yourself. Okay. You maturity. That means you are mature enough. Nurturing मतलब आपको लोगों को अपने सुपरविजन में रखना पसंद करता है. ठीक है? और कंट्रोलिंग मतलब आप डंडे की जोर वाले. That is nurturing. Natural मतलब that is your personality. Natural मतलब आप नेचर के साथ रहना चाहते हैं, ना ही अडैप्ट करना चाहते हैं, ना ही कंट्रोल करना चाहते हैं और ना ही आप नर्चर करना चाहते हैं. ठीक है? One has to be more of adult. Adult आपका हाई रहना चाहिए. बेस्ट नहीं है, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है. Nothing is the best. See how one personality is shaped. आदमी की पर्सनालिटी कैसे शेप होती है? See in the social situation, your family comes first. Then family से आप थोड़े बड़े होते हैं. Then your social environment. Then your working space. And then the environment as a whole. Your industry that affects you. And that makes you as an adult. जब जैसे तुम लोग अभी कब पास आउट हुए हो, कितने देर हो गई काम करने? 3 years now. I think so. They are the youngest 3 years. Just और भी है कोई? इससे कम 3 years से कम experience? Madam, 8 months. Okay, 8 months. You just passed out? Okay. How do you feel working in the organization? Where's the mic? Where's the mic? Where's the mic? Okay. How has environment, she's just out of college, 8 months old and working. How has environment changed you? You know, according to my prospects, my company environment is too good.
And you know, name the company you work company name is a 6 Technology India Private Limited. Is in the sector 6 Faridabad. Sister concern of Escorts. Yeah, this is basically this is a personal company of a Nanda family of a Escorts group. You know, my company's work experience according to my prospects, my point of view is to be a very healthy environment, is to be a according to the is in the HR department. All the HR, what basically the company is a certified with the TS, ISO and TS also. Proper system is implementing in the organization, and basically what is the system is to be give the training and development for the workers and the managing also is to be give the proper training on the proper timing and development system, and each and everything is too good. Every time according to the employers needs they are working. According to the person time to time is to be a take the suggestion from the company, is to be a proper satisfaction that the company is giving to the particular employee of the company. Every time, time to time the situation they are solving the problems of the employees also. No, the maximum experienced person, thank you. I believe Mr. Chauhan, Mr. B.R. Chauhan must be the most experienced person as far as HR is concerned. How things have changed from past to your experience, how many years? My total experience in the industry is 33 years. And prior to that, I was in the education department of Haryana government. So total, including all, is 37 years. So at present, I am 60th running year of my age, and my total service is in Faridabad. So I saw that Faridabad in between this 70s, 75, तो जैसे बोलते हैं ना कि सोने की चिड़िया था फरीदाबाद, और बीच में जैसे मैडम ने बताया कि हम बीच में बदलाव के साथ में अपना कदम नहीं मिला सके, उसकी वजह से फरीदाबाद उजड़ता गया, बहुत उजड़ा, और अब पिछले कुछ समय से लग रहा है कि दोबारा फरीदाबाद के अंदर फिर कुछ बहाली की आशा की किरण जाग रही है। गुड़गांव को मैंने उस टाइम एक ऐसा देखा था, इट वाज नोन ओनली इन द नेम ऑफ माता शीतला देवी टेम्पल। गुड़गांव वाज नॉट देयर, इट वाज अ जंगल, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप फॉर द स्पैरो टू टेक इट। माय डिस्ट्रिक्ट हैड बीन Gurgaon previously, Faridabad came in existence before me during the period of my stay in Faridabad itself. Because I basically belong to district Faridabad, born, brought up, educated, and total service of 37 years in Faridabad. So gentlemen, lot of change I have seen during the period of my this long working in the industry. Previously, Faridabad was working on an old style, and now the time has come to change ourselves according to the need of the time. As we are discussing on the topic, this all effectiveness, the all requirement of time, changing technology, comparison, competition. So all this is required. A lot of changes there, technologies. IT, in my period when I started my career, there was no computer, no calculator, nothing doing. There was only a facet machine being done. Click, 1 से गुना हो गया, being done 2 से 10 से गुना हो गया, 100 से हो गया, 1000 से हो गया. That was the time also. December 1975, I came here to report, and I could not join because I wanted to see what is the culture of Faridabad. Because when I came, I took the bus, it was difficult to climb. And when I came to Faridabad, it was difficult to get out from the bus. That was the kind of a story. The buses were coming from international bus stand, interstate bus stand, and they were marching at KC Cinema, at the back of KC Cinema. Now KC Cinema is no more, but that time it was a milestone of the day. And believe me, in the evening, if you are hungry at about 8 o'clock, there was no food available in any of the hotels. There was only one 3-star hotel that was by the name of Holiday Inn at Bata Chowk. I don't think that younger generation even knows about it.
Does anybody knows about where was the holiday inn? Only 4-5% those were of my age. Yeah, it was there by Bata Chowk, not hardware. Bata Mode rather. And thereafter, if you look at it, if somebody tells somebody in the evening, well friend, you have to go to Seagown, nobody could cross Sector 7. That was the days, that was the time when people used to be very shivering of Seagown and that nearby village. That is now something different. You know, people feel that they should be living in Faridabad. I still remember there was no hotel in Faridabad, no proper mall, no shopping center, only the dress was there. Faridabad was famous for two things. One was mosquito and second was रेली. शाम को रेली आती थी तो ये नहीं पता लगता था किस मोड़ पे है और कौन से मोड़ पे है. आज अगर फरीदाबाद की अगर फिजा देखें तो दोस्तों लगता है कि वो दिन लौटने वाले. मुझे याद है कि बर्तन की जब उस एरिया में जाते हैं तो गगनचुंबी मारते हैं, इतनी ऊंची ऊंची मारते हैं कि फरीदाबाद में तो कभी सपना भी नहीं लिया था कि इतनी ऊंची मारते हैं. हम तो 2-3 स्टोरी बिल्डिंग्स को भी अपनी गर्दन उठा के देखा था. आज तो दोस्तों बिल्कुल कायाकल्प हो गया. इसमें कोई शक नहीं. जो चौहान साहब ने कहा कि इंडस्ट्रीज एक दफे उफान पे थे. हम फरीदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ हिंदुस्तान कहा करते थे. दुनिया में जब मैनचेस्टर जो कि इंडस्ट्रियल एरिया था उसकी एक अलग पहचान थी, इसी तरीके से फरीदाबाद की भी. लेकिन आज वो दिन फिर लौटने वाले हैं. जो हमारे नए नौजवान बहनें हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को अगर कहें कि फरीदाबाद ऐसा होता तो वो बिलीव नहीं करते. मुझे याद है कि फरीदाबाद में जिस वक्त कोई कमरा ढूंढता था तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आती है कि वो टॉर्च की लैट्रिन होती थी. मैं नया नया आया फरीदाबाद में तो मुझे मालूम नहीं था. तो मैं जिस मकान में रहा करता था तो सुबह आंखें बंद होती थी, लैट्रिन गए. जब उठ के आता था तो मुझे पता लगता था लैट्रिन हुए या नहीं हुए. तो मैंने 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई है. चंडीगढ़ के माहौल बहुत बढ़िया था, फरीदाबाद में आने के बाद में लगता मेरा पेट खराब है. उनका बाबा साहब कहाँ रहते हो? मैंने जी 5 नंबर गुरुद्वारे के पास में मकान लिया है. कहते कितने बजे उठते हो? मैंने जी 6 बजे. कहते या तो आप बहुत लेट से उठा करें या 4 बजे उठा करें. मैंने कहा साहब 4 बजे उठना तो बहुत मुश्किल है. उन्हें तो लेट उठा करें. और जिस वक्त आप लेट उठे और टॉयलेट के लिए जाए तो नीचे ना करके बैठा. तो दोस्तों मैं कह नहीं सकता, मैंने पहली दफा नीचे में करके बैठा तो सूर्य मेरे से पहले तैयार खड़ी हुई थी और बोला लैट्रिन साहब. तो इस तरीके का वो माहौल था. आज अगर हम उस फरीदाबाद की बात करें तो सपना सा लगता है. कोई आदमी ये सोच नहीं सकता. मेरे को याद है मेरे कमरे की लाइट जलती हुई रह गई. मैं दरवाजा बंद करके चला गया. पीछे से मेरे लैंडलॉर्ड ने मेरा ताला तोड़ा, लाइट ऑफ कर दी. मैं शाम को आया तो मैंने पूछा मेरा ताला किसने तोड़ा? बोला की पे करे ने लाइट जल्दी पे बंद कर मारी होते की थी तेरा जंगला टूट गया सारी लाइट बंद करनी. तो दोस्तों ऐसे वो माहौल था, ऐसा वो समय था. आज बहुत परिवर्तन आया, बहुत चेंज आया है. आप लोगों को इस बात को ये मानना चाहिए कि हम तरक्की के उस आसार को देख रहे हैं पर अपने पीछे बहुत सी उन यादों को छोड़ के आ गए जिनकी हम आज सिर्फ परिचय. तो मेरा अनुभव पिछले तकरीबन 34 सालों का, जिसमें से मैंने 3 साल बाहर गुजारे हैं, 31 साल मुझे फरीदाबाद में, 31 साल प्लस हो गए, 31 साल मैंने फरीदाबाद में बिताए हैं. तो मैं समझता हूँ मेरे को एक बहुत अच्छा अनुभव है, एक बहुत अच्छी अनुभूति है कि आज के फरीदाबाद और जो कल का फरीदाबाद जो था और आने वाले कल के फरीदाबाद में कितने जमीन आसमान का अंतर होगा इसके बारे में अभी तो नहीं सोच सकता. पर उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी ये परिकल्पना से भी बहुत अच्छा है. थैंक यू. Dr. Neena Mansakh working for ICRT from the last 20 years. After my PhD in 1985 from the University of Chandigarh, I joined in
I joined this R&D center in '86. This was my first, maybe the last working place. And I really enjoyed working in IOC. It's that of Asia's #1 R&D center, and almost all the facilities wise, all the basic world-class facilities are there in our R&D center, which are there for the petroleum products. It's basically for the R&D of the petroleum relating to all type of fuels and lubricants. We have a world-class like engine testing facilities, analytical facilities, and what I can say, I'm very lucky to work in such an organization, and I love working there in IOC. Then the last, I can say that these type of training programs, lot of training programs are there being organized in IOC as a whole, to cultivate the needs of the employees, to be very effective in every sphere of people where they are working. They are given very regular training, that they are sent to workshops and seminars, nationally as well as internationally. So I feel very proud working in IOC. Sometimes being a lady, I have to work very late in the night when the experiment is on. I'm working in the analytical department. Then sometimes I have to stay for my long-term experiments and all that. So I along with my team stay in the office sometimes, and I don't switch over when my time is off for 5:30 as I switch off my experiments and go home actually. So I feel like my responsibility towards my organization, and my organization has given so much to me, so I should also fulfill my duties. So that is, and almost all of you can come and visit our R&D center whenever you have a chance. Well, friends, everybody has his own experience for Faridabad. My colleague Mr. Bhatia is as old as I am. He will also share his experiences. Good evening, everybody. I am S.C. Bhatia. I am working with the Scout Group as manager administration personnel. Thereafter, I switched on to Park Academic at Narayana. Thereafter, Park Globals at Gurgaon. And now last my assignment was with Ansul Private Limited. Here to switch gears and everything. But now I am working as a consultant, independent consultant, having about 40 companies with me, where I am advisor to labor, ESCT and Metras at Okhla. Of course, I am part of PMA, and my last meeting when we had that last seminar, I think 2 months back, I requested Mr. Madhwa to keep continuing this kind of program where we can develop our youngsters also, and of course we can also upgrade our knowledge. We learn more things from the youngsters, we can upgrade ourselves also, but now I request again to Mr. Madhwa to upgrade our position of PMA also. We have a full-fledged building of PMA in Faridabad. My youngster father may not know about that, but I request Mr. Madhwa to rethink on this issue and upgrade the situation, and we must have our own building activated, and we must organize programs at our own place so that everybody should know where do we live, what we do, and what is our own status of personal management association. My request to Mr. Madhwa again, please do something for this. Wherever you have to follow up the system, you need help from we people, we are with you. We assure all professionals like personal managers of Okhla, Delhi, Faridabad, everybody interested to share with you people and support to you to culture this program of PMA, which was we started in 1966 probably, and I think we must revive the situation. So thanks Mr. Madhwa. If you have any problem with this kind of situation where you need our help, we can help you out. We can request all our youngsters to be associated for one profession, that is HRD, now new concept. Otherwise you are known to be personal management association. Wherever you feel our help, we can help to you. Wherever you need help for youngsters, they are with you. Please do something for this. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Bhatia. Okay, now just see this presentation. बंद हो जाएगा फिर. I'm thankful to Mr. Bhatia for giving me a sport. कि बगालो चांद तो फिर से हमारी ईद बाकी है, उसे सौगात देके भी ख्याल ईद बाकी है, कि दूरी से जुदाई से मोहब्बत मिट नहीं सकता, जरा दिल को संभालो यारों को ईद बाकी है.
दोस्तों, उम्मीद के सारे में मिल रहा है और आपकी उम्मीद और आपका प्यार अगर इसी तरीके से बना रहा तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फरीदाबाद में पीएमए फिर अपनी बुलंदियों को छुएगा और आपके सहयोग से छुएगा। हर घर और हर दो कामगार के पास हम अपना संदेश पहुंचा के रहेंगे। फरीदाबाद को फिर उस बुलंदियों पर ले जाना है, पीएमए को उन आदर्शों पे स्थापित करना है जिसकी हमारे पुराने पुरखों ने, हमारे दोस्तों ने कल्पना की थी और इसका फाउंडेशन किया था। मैं इतना ही कह सकता हूँ, मेरे वहाँ भी बहुत से साथी हैं, चौहान साहब, भाटिया साहब, देशवाल जी और नौजवान साथी जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है और आज हम पुनर्जागृत करने जा रहे हैं पीएमए को और उसमें एक ये कड़ी आज की भी जरूर रहेगी। उसमें अगर आपको कोई तकलीफ हुई है तो मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आपने जिस हिम्मत के साथ में बैठ करके इस प्रोग्राम को सुना है, हमें सहयोग दिया है, हम तहे दिल से आपका कर रहे हैं। Just see this presentation carefully. This is because of stress, maybe overload. maybe they don't have power there also. Maybe no power there, or maybe the computer is not working for a long time. प्रमोशन नहीं दी है किसी से भी। सी सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस कैन बी मेनी फेसेस। स्ट्रेस हम लाइफ में स्ट्रेस से डील करते हैं। क्यों स्ट्रेस होता है लाइफ में, हमें क्या करना चाहिए कोपिंग विद स्ट्रेस के लिए? व्हाट इज द मेन थिंग ऑफ स्ट्रेस? व्हाई डू यू थिंक स्ट्रेस इज देयर? यू हैव स्ट्रेस? What I think about stress. Okay. So to remove my stress, I should manage my things well in time. Okay. So do you? Sometimes I'm not able to. Okay. Do you think stress is positive or negative? Both. What do you think? Negative. Don't you think it should be? It is positive also in many circumstances. Yes, sometimes it can be positive, but if you see overall it is negative only. It will affect your health, not only your health, it will affect the surroundings, atmosphere, your neighbors, your subordinates, superiors, it will affect everybody. Okay. I want this person. Stress is most of the times negative. Your thought. Stress is most of the times negative. Okay. How about you? What's your name? Naval. You seem to be very cool, according to face reading. नहीं? फेस से क्या लगता है? बहुत कूल है. Okay. Explore yourself here. Okay. How about you? आपको कभी स्ट्रेस होता है? Sometimes. क्या करते हो आप स्ट्रेस में? हिंदी में बोलिए. स्ट्रेस क्यों होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है. कभी अगर काम का बड़ा ज्यादा हो जाता है तो उससे स्ट्रेस हो जाता है, या किसी कॉलीग से लड़ाई हो जाती है, या आपका अगर बॉस एग्रेसिव हो और आप भी एग्रेसिव हो तो कॉन्फ्लिक्ट होती है. बट व्हाट इज आपको रिजॉल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट. ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट रही, यू हैव टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट. हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स? आपको क्या करना है? विड्रॉल करना है, या आप सबमिट करना है, या कॉन्फ्रंट करना है, या कॉम्प्रोमाइज करना है? आप क्या करना चाहते हैं? आप सर्टेन सिचुएशंस में क्या करते हैं? अगर आप विड्रॉल करते हैं अपने आप को, आपको स्ट्रेस होता है कि नहीं? आप विड्रॉ कर जाते हैं सिचुएशन से, नहीं ये तो इससे तो डील करना ही बेवकूफ़ी है, कुछ है, विड्रॉ कर लेते हैं अपना. कभी भी स्ट्रेस होता है, या यू ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ टू एक्सेल योरसेल्फ इन अ पर्टिकुलर टास्क, तब ये प्रॉब्लम आती है. और इट कैन बी फाइनेंशियली, इट कैन बी पर्सनली. स्ट्रेस होता है. व्हाट टू डू? दीज आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस. क्या करना चाहिए स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए? आप क्या करते हो? There's the mic. Analyze the situation. Okay, you analyze the situation. Well, Logically give the reason and finalize the things. okay. छोटे में बात करना ठीक है, वो भी एक तरीका है रिजॉल्व करने के लिए. रिलैक्स फील करते हैं. आप क्या करते हैं?
Sometimes Exam में we are sometimes listening to music. Okay, listening, that is also stress buster. That is called a stress buster. But sometimes the mother says, or you yourself go out for a walk. Why walk is necessary? There is a fact Just for behind it. relaxation. आपका ब्रेन है, ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, नरिशमेंट चाहिए होता है, एंड दैट ब्रेन बाहर घूमने से आपको ऑक्सीजन मिलता है. लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो कॉज स्ट्रेस. 7-8 लंबी सांसें लीजिए, ठंडा पानी लीजिए. कौन बोल रहा है? ये किसने बताया? अच्छा, ठीक है. दैट इज ऑफ ब्रेन. वो भी सिगरेट पी के स्ट्रेस लेकिन सिगरेट पीना क्या अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैंने देखा जो टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो दे स्मोक सिगरेट. Sir, but smoking cigarette is bad for you. I'm not saying that this is the answer. I'm saying how to get free from stress. ऐसा है, ये समस्याएं तो हर किसी के सामने आ, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या कोई. अब समस्या में खो के अगर आप अपने आप को या सामने वाले को नुकसान पहुंचाओ, वो समस्या का हल नहीं. अब यहाँ है, लाइट नहीं है, तो जनरेटर को तोड़ दो. क्या कर सकते? प्रोजेक्ट का काम नहीं कर रहा, इसको तोड़ दो. आदमी काम नहीं कर रहा, उसे फोड़ दो. ये समस्या का हल नहीं है. क्या करना चाहिए? अच्छा ये है कि आप या तो समस्या से अपना ध्यान हटाओ. डेफिनेटली. अगर आप सोचो नहीं कि गर्मी है, आप सोचो कि आप ठंडी जगह में हैं, आपको ठंडी हवा आ रही है. डेफिनेटली अगर आप सोचो आप ठंडे कश्मीर में बैठे, आपको ठंडी हवा लगेगी कि ठंडी हवा आ रही है. आप सोच के देखो मन में. अभी आप थोड़ा सा मेडिटेशन एक्सरसाइज कराऊंगी आपको. समस्या से ध्यान हटाओ. अब मैं ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड हैरोग्राउंड में एज अकाउंटेंट. ओके. और मेरी आदत है जब मैं भी अकाउंट का कोई भी काम करता हूँ तो गाना गुनगुनाता है. डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है. मेरे बॉस इस बात को मिस्टर राजेश गुप्ता जी जानते हैं कि ये ऑफिस में गाना गाता है, और वो ये कहते हैं भाई आज आवाज नहीं आ रही है. मैंने थोड़ा इसमें फिक्र का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेरा तो काम ही फिक्र का. पता लगा मोहम्मद रफी की गजलें गुनगुना रहा हूँ, और फिक्र कुछ लिख गई तो आंकड़े कुछ बन गए. भाई मोस्टली मैं काम यही करता हूँ कि काम करते वक्त अपने आप को थोड़ा रिलीफ करता हूँ. नहीं तो काम अगर ज्यादा हो गया तो फिर शाम तक सिर में दर्द हो जाता है. तो यही है कि समस्याएं हैं, लेकिन समस्या से आप इतना मत जोड़ो कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लो या सामने. फिर तो मैं भी यही करूंगा कि अगर समस्या आ गई तो या तो अपने कॉलिग्स का सिर फोड़ूंगा या अपना फोड़ूंगा. जैसे आपको दिखाया मैंने क्या करते हैं यूजुअली होता है ना. इससे अच्छा तो यह काम छोड़ दो, अपने समस्या से ध्यान रखो. अगर आज मन नहीं है मत करो, लेकिन समस्या को समझो, उसे रियलाइज करो और उसका हल ढूंढने की कोशिश करो, ना कि नुकसान पहुंचाना. वेरी गुड. आई थिंक सो. वेरी गुड. और समस्या अगर आपके कंट्रोल में है तब उसको कंट्रोलेबल समस्या को आप हल कर सकते हैं. जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको हल नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी भी कर दो. मैं पर्सनल आइए, जो मेडिकल पर्सनल डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसी डिपार्टमेंट में होता है. अब उसको हल करने के लिए मैं तो सबसे बढ़िया सोचता हूँ कि पहले उस सिचुएशन को एनालाइज किया जाए कि सिचुएशन क्या है. उससे भागकर या ये कह दो कि इसको सिचुएशन को छोड़ दो, आगे सोचो, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे सामने सिचुएशन करो उसके बाद देखेंगे. दूसरा है 4 गिलास पानी पीता हूँ. मैं अपने बता रहा हूँ, 55 साल का हो गया हूँ, 35 साल से नौकरी कर रहा हूँ. तो मेरी ये है कि मैं पहले सिचुएशन को देखता हूँ, एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, 3-4 गिलास पानी पीता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, 5 मिनट के बाद डिसीजन देता हूँ. चाहे ये मेरे 35 साल की नौकरी में बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप में रहा हूँ, कहीं से पूछ लीजिए, वो आपको मेरे सब कुछ बता देंगे. थैंक यू सो मच. आप कुछ बोलना चाहिए? आप अपना नाम बताइए. कंपनी and I am working in Newcam Limited. Yeah, whenever I feel stress, I keep sit on the chair, close my eyes for a second, and then I take the decision what to do. And I just keep myself calm on sitting on the chair. That's all. I do the long breathing exercise. In the office also, I do long breathing exercise to calm my stress. सुना होगा कि सवेरे जब आते हैं, बहुत कंपनीज हैं फरीदाबाद में. आप कुछ कहना चाहिए?
ऐसा है कि स्ट्रेस को दूर करने के अपने अपने अलग अलग तरीके रहते हैं। आप देखना पड़ेगा कि कैसी सिचुएशन है, कैसा स्ट्रेस है, किस बात को लेकर के स्ट्रेस हुआ है। यू हैव टू डायग्नोज द सोर्स फ्रॉम वेयर द स्ट्रेस हैज कम टू योर माइंड। उसके हिसाब से आपने अपने को करना है कि कई बार वो छोटे वालों से भी स्ट्रेस मिल जाता है कि उसने कोई टाइम पे काम करके नहीं दिया तो यू आर टेकिंग स्ट्रेस, ही इज क्वाइट फ्री। तो उसको अपने तरीके से समझाना, बुझाना, बताना, बड़े वाले का भी हो। तो बेस्ट तो ये है कि वी शुड डू दिस मेडिटेशन आल्सो। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने घर पे भी सुबह, जैसे अभी मैडम ने बताया, सुबह घर पे और इंडस्ट्रीज में करते हैं। हिंदुस्तान सिटीज के अंदर ये कराते हैं, सुबह सुबह कराते हैं, मैंने देखा है। माय फ्रेंड इज देयर, हेड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट। ये अपना एक रूटीन ऐसा बना लीजिए कि स्ट्रेस एक ऐसी बुरी चीज है, उसको ना आने दें अपने पास में। आएगा जरूर, डेफिनेटली इट विल गिव यू ए पेन। उसको आपने कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है। कुछ एक तो चीज ऐसी है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा अगर वो नहीं है तो जैसे तुमको उधर निकाल दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बी रिलैक्स। और फिर उसके बाद कुछ आपके काबू की जो चीजें उन्हें कर डालिए, और जो कुछ दूसरी चीजें हैं उनको अपने तरीके से करके, किसमें ठीक है किसी के साथ पार्टिसिपेट करके करना है, जैसे मैंने बदवा साहब से कुछ करके करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो स्ट्रेस बहुत तरह के होते हैं। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, इसे जितना दूर करके इसको निकाल दिया जाए और इसका हल ढूंढ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे ऑफ कीपिंग। समझदारी से दूर होता है। जैसे बोलते हैं गुस्सा अकल को खा जाता है, तो अकल को मेंटेन करने के लिए तो गुस्से को दूर करो, कैसे ही करो। तो दिस इज द थिंग हाउ यू डील विद दिस। Hello. And working with Newcom Limited Tohana as manager material. स्ट्रेस तो हर साहब ने बोला कि पर्सनल में सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है, हर किसी को अपने काम में ज़्यादा वो लगता है। अब मटेरियल परचेज करना है, आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। सप्लायर्स आपको पेमेंट्स के लिए वो करेंगे तो आप अंडर स्ट्रेस होंगे। उसमें क्या किया जाता है कि अपने आप को एक बार उससे हटा के एकांत में ले आए, 5-4 मिनट उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचे, समस्या का हल आएगा। तो दुखी अपने स्ट्रेस मीन्स अपने आप को दुखी करना, तो दुख से हटा के सुख में ले जाए तो समस्या का हल मिल जाएगा। थैंक यू। ओके, नाउ लूज कर लीजिए अपनी बॉडी। बैठने का तरीका बिल्कुल लूज, बिल्कुल विश्राम की स्थिति में बैठिए, चश्मा उतार दीजिएगा और बिल्कुल ऐसे कि जैसे आप कहीं और बैठे हैं, उस गर्मी के माहौल में नहीं है, उस तनावपूर्ण माहौल में नहीं है, और बिल्कुल अपने आप को नहीं, जस्ट अ स्मॉल एक्सरसाइज। आपने हिंदुस्तान टाइम्स में देखा होगा, हर एक जगह नोइंग योर इनर वॉइस आता है। आपने पढ़ के देखा होगा, बहुत अच्छी सेइंग्स आती है। इट्स वन पार्ट ऑफ इट व्हिच आई लाइक, आई वांट एवरीवन टू डू इट। जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी। चश्मा उतार दीजिएगा, दूर कर लीजिए। आपको एसी की आवाज आ रही है, उसको ऑब्जर्व करिए, उसकी आवाज सुनिए, बाहर की एनवायरनमेंट की आवाज सुनिए। धीरे धीरे अपने आप को शांत करिए। यू फील अ वाइट लाइट अबव यू, एक सफेद रे ऑफ लाइट है जो आपके अंदर आ रही है। ये लाइट आपके सिर से अंदर आ रही है। ये लाइट होप की है, योर पॉजिटिव एटीट्यूड की है, योर असर्टिव बिहेवियर की है। ये धीरे धीरे आपकी लीडरशिप क्वालिटी की है। ये आपको एंड सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, the thumb, back to your elbow, shoulder, chest की तरफ पहुंच रही है। This is the light of hope. This is the light of rejuvenation. स्टमक तक आई है, फिर थाई पे, both knees, then your ankle, then your toes and your finger. Relax your body. Totally relax
yourself. Think of the best thing in your life, the happy moment of the life, the best thing, the happiest moment of the life. Think it. उस समय आपको कितनी खुशी हुई थी। Enlightenment अपने आप में अब लाइए। This will give you strength. This will give you happiness. This will give you joy. यही happiness आपको अब अपनी लाइफ में लाए और इसी से आपने ये आप अपने मन में रखिए। All the challenges we'll face in our life. Yes, I can feel my relax. धीरे धीरे अपने दोनों हैंड्स को रब कर ले और अपने आंख में लगाए। And slowly open your eyes. You should be very slow in opening. Or you feel relaxed. ये बहुत चीज़ें अफेक्ट करती है। आई नेवर बिलीव इन दीज थिंग्स, बट एक साल से थोड़ा थोड़ा 5 minutes आई ट्राई टू डू दैट। नाक वाला, ऐसा वाला डीप ब्रीदिंग और एक वो ब्राह्मणी वाला ऐसे करते हैं। इट रियली रिलैक्सेस यू। इट रियली रिलैक्सेस। हाउ डू यू फील? Rejuvenated? How do you feel now? Better? Better. Okay. Better? Okay. I hope this workshop has and will help you to enrich yourself, and I wish you all the best for your future. You're a very big yoga also. Thank you. We will go for a cup of tea. No, we'll have the feedback and then we'll give it. Friends, We'll have we tea. are breaking for a cup of tea. We'll come back. 2 requests. One, you can check your photograph certificate. In case somebody has not got it, please raise his hand and can ask for the certificate. And last exercise will Has everybody? No. Your good name? Mr. Khan. Questions, managing your time, decision making, leadership, knowledge about your surroundings, coping with circumstances, positive thinker, creativity and sense of worth. कहाँ देखिए आपका लैक है, वो चीज आपको सुधारनी है। अब अपने आप को एसेस कर सकते हैं और जहाँ आपको लगता है फ्लॉज है, वहाँ आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ और आपके सुझाव जो आप चाहते हैं कि हम आने वाले दिनों में जो भी प्रोग्राम करें उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाएं, क्या क्या तरक्की करें, क्या क्या ठीक करें, जिससे कि प्रोग्राम और बढ़िया कर सकें। Before that, I'll say one thing. Anybody at the end of the day wants to say something regarding this program, regarding the speaker, regarding other things, so with the next program. Is somebody interested in saying? Yes, Mr. Dev. नमस्कार साथियों, अच्छा लगा। जैसे ही उसे ऐसा लगा 5 साल होटल में आ गए हैं, सेमिनार में नहीं है।
सबसे पहले इस स्थान पे हम जा रहे हैं, मंदिर पूजा के लिए होता है तो मंदिर रखना चाहिए। ट्रेनिंग क्लास में जा रहे हैं, ट्रेनिंग क्लास करनी चाहिए। जिस किस्म का जो स्ट्रक्चर है सर, उसमें ऐसी इम्प्रूवमेंट हम करें कि लगे कि हम सीखने के लिए आए हैं। हम एज स्टूडेंट रहें, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए खाने की इंतजार ना करें, ऐसा लगना नहीं चाहिए। नंबर 2, मैडम में विश्वास काफी है। मैडम वो डायरेक्टर हैं, लेकिन इनके पास जो सपोर्टिंग मटेरियल था उसकी हमें कमी खली। जो सपोर्ट बिजली की मिलनी चाहिए थी, जो प्रोजेक्टर था उसको बार बार फिट किया जा रहा था, वो नहीं होना चाहिए। लिटरेचर जो अवेलेबल कराया गया वो इन बिटवीन कराया गया, वो साथ में नहीं होना चाहिए, या तो वेरी इन एडवांस या लेक्चर के बाद होना चाहिए। टाइम शेड्यूल मैडम की नहीं रखा गया। HRM की बात की जा रही है। HRM सबसे पहले वही है, हम जो रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्री से हैं और ISO की बात करते हैं, GS की बात करते हैं। टाइम शेड्यूल का हम ध्यान रखें। मधुरा साहब ने आते ही कहा था कि अगला जो सेमिनार करेंगे, अगली ट्रेनिंग करेंगे, हम टाइम मैनेजमेंट में करेंगे। तो एज ए ट्रेनर, एज ए डायरेक्टर, इतने बड़े स्किल ऑर्गेनाइजेशन का DAV जिसमें नाम है एशिया में, उसमें कि हम क्लास के लिए आए तो टाइम के लिए हमें चीज नहीं आनी चाहिए, पता होना चाहिए कितने बजे लंच मिलेगा, चाय कितने बजे मिलेगी। डायरेक्टर साहब का NK शर्मा जी का जो लेक्चर था बहुत बेहतरीन था, प्रैक्टिकल था, पर आई थिंक डायरेक्टर महोदय ने उसको अपने सिलेबस में नहीं रखा गया था। लेंथी हो रहा था, उनके चेहरे से लग रहा था, मैडम के चेहरे से कि दैट इज नॉट ए फिक्स लेक्चर, बट उनका लेक्चर अच्छा था। उन्होंने जो हमको शेयर की अच्छे लगे, वो पहले से ही वेल प्लान होना चाहिए। PMA की तरफ से काफी दिनों के बाद जो एफर्ट्स किए हैं, मधुरा साहब का जो व्यक्तिगत भाटी साहब ने जैसे कहा 80s में जो सिचुएशन थी वो थोड़ी चली गई। मधुरा साहब ने चार्ज लिया, 4 साल हो गए हैं, तो दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। मेंबरशिप का हमारे हर इंस्टीट्यूट में, मेरे भी अपने कुलीग हैं, साहब ने हमेशा ही कहा, जो नए लड़के आए हैं, नए जो ट्रेनी आए हैं, नए जो प्रोफेसर आए हैं, मेंबरशिप जो है हम सब मिलकर तैयार करें। मेंबर से ही आगे संस्था बढ़ती है, संस्था से ही आगे बात बढ़ती है। वो प्लेटफॉर्म भी करें। और PMA का जो एक प्रोफेशनल वे में मोनोग्राम हुआ, रिसेंट फोटोग्राफ इमीडिएटली आगे, साइंटिफिक इमीडिएटली आगे, इसे अच्छा लगा कि PMA भी हमारी प्रोफेशनल बॉडी है, आगे बढ़ेगी, इसका फकर है हमें, हम उसके मेंबर हैं। धन्यवाद। थैंक यू देवपाल जी। मेरी HR प्रोफेशनल से एक ही गुजारिश है कि जैसा देशवाल जी ने कहा कि हमको PMA को आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा एक ही कहना है इस बारे में कि जो हमारे साथी PMA के मेंबर नहीं है, उनसे नम्र निवेदन कि वो अपने मेंबरशिप के फॉर्म मेरे ऑफिस से मंगवा लें। अगर वो मेंबर करना चाहते हैं तो मेंबरशिप उनके लिए होगी। नंबर 2, जो लोग मेंबर नहीं बनना चाहते उसके लिए हम किसी को कंपेयर नहीं करेंगे, आपकी संस्था है। दूसरी बात जो कहना चाहते हैं कि हम एक HR प्रोफेशनल्स की डायरेक्टरी बनाने जा रहे हैं, जो कि अभी काम चल रहा है। हमने सभी HR प्रोफेशनल्स को, जो कि हमारे को जानते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, जहाँ तक हमसे संभव हो सका, हमने सभी को एक लेटर भेजा है और साथ में एक परफॉर्मा लगाया है कि आप अपना नाम और अपनी पूरी जानकारी उस परफॉर्मे में हमें भेज दें, ताकि हम एक डायरेक्टरी, ताकि कभी किसी को किसी की मदद की जरूरत पड़े तो उसके बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाए। वो बिना मेंबर बने भी हो सकती है। और यदि किसी साथी को वैसा फॉर्म नहीं मिला तो वो कृपया मेरे को लिख सकता है, या मेरे मोबाइल पे मेरे को फोन करके अपना नंबर, नाम बता दें, मैं उनको वो लेटर भेजने का कष्ट करूँगा। जिस साथी को इंटरेस्ट हो मेरा नंबर लिख लें, मेरा मोबाइल नंबर 9810045520। Once again I will repeat, my name is A.K. Vadhva, my number is 9810045520. That is printed at the end of the brochure. The brochure from the effective program, this self-effectiveness, you will find at the back there is a complete address along with the telephone number. In case somebody wants to contact you for
membership or directory form is most welcome. At the last, I'll say I have seen few words, few suggestions by the participants. I will try to come up to their expectation, and once again, I am thankful to all the participants and the sponsoring industries for their wholehearted support in making this program. Not last but the least, my apology for the inconvenience. Remember that during the daytime because of the failure of the generator and the power supply. In case anything has gone wrong, I take it personally and apologize personally on behalf of PMA as well as BMA. Thank you very much, friends. We will now go for tea and thereafter we will discuss. Thank you very much. Mr. Dr. Ravi Kumar, Certificate Rajiv Kumar Singh. Please proceed. Thank you very much. Let's go for a cup of tea. Thank you for bearing with us for the hot weather.